Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about Hegel's idealism. Like we saw about the absolute idealism brought forth by Hegel has had a major impact on our society. Right? He began. Then we saw the Hegel's drive the absolute spirit using the dialectical method. This method consists of the thesis, right, and thesis that lead to the antithesis and vice versa. Each stage in this process finds its truth in the one that follows. Hegel started with being, which has no imperial constant. Being cannot be differentiated from what is not itself. When we think of being, we think of nothingness. Phonics bana. Hegel associated this pure thought with being, right? Then what Hegel proceeded to conclude from this, that he is a God who becomes God is reduced to the real universe. World history is the realization of divine plan. The internal manifestation of God is the dialectical process. The process will continue until God reaches full self-realization. Right? One could conclude that wars are necessary conflict to bring about this self-realization. For Hegel, there are two evolutionary processes taking place in history. The combination of nature and spirit evolved through the dialectical process to continue the revelation of God. Thus, Hegel uses the dialectical method to drive the absolute spirit or God. Then, nature is part of the ongoing process of God's self-realization, right? And first, one of the aspect of nature is mechanism. The second aspect of nature is physics, right? It begins with general individuality opposed to particular individuality. Then the third aspect of nature is organic physics. An organic originate with geological opposed to vegetable nature. Then nature is raised to organic physics by this synthesis. Thus nature becomes part of this divine plan of self-realization. Sorry. Just a minute. Sorry. Nature becomes the part of self. Oh. Then spirit is the part of revelation of God. Spirit is a movement in the evolution of absolute and is defined as a self identity. Okay, the first part of spirit is subjective spirit. It is begins with the soul, and then and this is the part in which phenomenological of spirit develops. Finally, absolute knowledge is attained, right? Then the second part of spirit is objective spirit, right? The second part of spirit kya hai? Is the objective spirit. And the third part of spirit is absolute spirit. It begins with art, which is sensible manifestation of the absolute. The higher state of religion is the representation of the absolute idea. Art and religion are raised to the level of concept, which is philosophy. Philosophy is the absolute knowledge of itself. The overall evolution of absolute spirit is a synthesis of subjective and objective spirit. Then, in conclusion, we say that Hegel's philosophy can be reduced to the evolution of absolute spirit towards self-awareness. After Hegel's death, डार्विन, अभी हेगल की डेथ हो गई, उसके बाद डार्विन ने उनका काम कंटिन्यू रखा एंड ही कंटिन्यूड द इवोल्यूशन टेकिंग प्लेस टू अचीव हायर स्टेट. मार्क विल टेक हेगल्स थ्योरी टू द पॉइंट ऑफ डाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. Then moving towards the next point, that is the theory of state. Hegel understood the world as process rather as made up of entity. See, Hegel ने क्या देखा
दैट वर्ल्ड एज प्रोसेस, वर्ल्ड क्या है, ये पूरा एक प्रोसेस है, रैदर देन मेड अप ऑफ एंटिटीज, मतलब एंटिटी से नहीं बना, ये वर्ल्ड पूरा एक प्रोसेस से बना है. ही बिलीव्ड दैट वी नीड टू गेट बिलो द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू रियली नो देम. अब उसने क्या देखा कि अगर आपको क्या चीज़ें क्या नहीं ये जानना है तो आपको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, ये सब आपको एक्चुअल में जानना बहुत ज़रूरी है, तब भी आपको पता चलेगा कि रियल में ये है क्या. द इसेंस नेग्लेक्ट्स द अपीयरेंस. फिर जो ये इसेंस है जो आप देख रहे हो कैसा है क्या है, उसके अंदर अपीयरेंस को ध्यान मत दो. द की इज़ टू लुक फॉर टेंशन and the contradiction that are apparent and inherent to each stage of the process. See, ये जो essence है, this essence neglects the appearance. The key is to look for tension and the contradiction that are apparent and inherent to each stage of the process. For Hegel, the state is the highest embodiment of the divine idea on earth and the chief means used by the absolute in manifesting itself as it unfolds towards its peace, perfect upliftment. See, for Hegel क्या है, the state is the highest embodiment. Hegel के लिए क्या है, state सबसे बड़ा है and it is the divine idea on earth. और ये सबसे divine idea, like अच्छी idea है on earth में, and the chief mean used by the absolute in manifesting itself as it unfolds towards its perfect fulfillment. Hegel argued that the state is the highest form of social existence. See, Hegel क्या आर्ग्यू करता है, ये स्टेट क्या है, सबसे बड़ा फॉर्म है ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. और क्या है, ये स्टेट क्या है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, स्टेट क्या है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द एग्जिस्टेंस है, स्टेट सबसे हाईएस्ट फॉर्म है यहाँ पे, एंड इट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द एंड इट्स परफेक्ट फॉर फुलफिलमेंट. Hegel argued that the state is the highest form of social existence and the end product of the development of mankind, from family to civil society to lower form of political grouping. See, state क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है डेवलपमेंट के लिए मैनकाइंड के, फ्रॉम फैमिली टू सिविल सोसाइटी टू लोअर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ग्रुपिंग. The state is a super organic whole made up of individuals grouped into local community volunteer associations etc. See, the state is a super organic whole. State क्या है, super organic whole है made up of individual, which is made up of individual grouped into local communities, voluntary associations etc. These parts have no meaning except in relation of the state. See, अब ये पार्ट को क्या है, कोई मीनिंग नहीं है अगर स्टेट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होगा, विच इज़ एन एंड इन इटसेल्फ. और वो यहाँ पे क्या है, यही सब खत्म हो जाता है, विच इज़ एन एंड इन इटसेल्फ. द स्टेट कैन डिमांड दैट इट्स पार्ट्स बी सैक्रिफाइस्ड टू इट्स इंटरेस्ट. सी, द स्टेट कैन डिमांड दैट इट्स पार्ट कैन बी सैक्रिफाइड टू इट्स इंटरेस्ट. राइट, स्टेट डिमांड कर सकता है ना. ईच मैन इज सबऑर्डिनेट टू द इथिकल होल. सी, ईच मैन क्या है, ईच मैन इज सबऑर्डिनेट टू द इथिकल होल. इफ द स्टेट क्लेम्स वंस लाइफ देन द इंडिविजुअल मस्ट सरेंडर इट. सी, अगर स्टेट बोलता है कि बाबा मुझे तेरी तो ज़िंदगी दे दे, हाँ, ताकि मैं सबको बचा सकूँ, तो आपको आपकी ज़िंदगी दे देनी चाहिए, देन यू शुड गिव अप योर लाइफ. अगर स्टेट डिमांड कर रहा है तो सुनो, जो भी स्टेट बोलता है वो सब कुछ आपने सुनना चाहिए, राइट, क्योंकि बियॉन्ड स्टेट देयर इज नथिंग ओवर इट. द स्टेट कैन डिमांड दैट इट्स पार्ट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर इट्स इंटरेस्ट. ईच मैन इज सबऑर्डिनेट टू द इथिकल होल. इफ द स्टेट क्लेम्स वन लाइफ देन द इंडिविजुअल मस्ट सरेंडर इट, बिकॉज एवरीथिंग इज अल्टीमेटली वन. The collective has primacy over the individual. See,
बिकॉज एवरीथिंग इज अल्टीमेटली वन, क्योंकि सब कुछ जो भी है सब कुछ स्टेट का ही है यहाँ पे, जो भी है सब स्टेट का है और स्टेट इज़ द अल्टीमेट। यहाँ पे स्टेट क्या है, ज़रूरी है, स्टेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हेगल स्टेट हैज़ नो रूम फॉर द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और अ लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। सी हेगल स्टेट क्या है, हेगल स्टेट हैज़ नो रूम फॉर द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल राइट or a liberal theory of the state. Instead, it provides an ethical underpinning for totalitarianism. See, instead क्या है, state क्या देता है अपने को, ethical underpinning for totalitarianism. The state is an independent, self-sustaining superorganism made up of men and having a purpose and a will of its own. See, the state क्या है, द स्टेट इज़ एन इंडिपेंडेंट। स्टेट हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। स्टेट क्या किसी पर डिपेंड रहता है क्या, नहीं। स्टेट क्या है, हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, सेल्फ सस्टेनिंग रहता है, खुद का खुद जीता है और पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, जहाँ पे हर कोई अच्छे से रह रहा है, स्टेट भी अच्छे से रह रहा है और सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज पर द पर्पस हियर। Because men across different grouping disagree in their moral feeling, each state rightly legislates its own moral code. See, because क्या है, men across different, अभी सी men क्या करते हैं यहाँ पे, men are coming from different across, see men, because अभी men acrossing different grouping, अब moral feeling सबकी अलग अलग है, ईच स्टेट का सबका अलग अलग कोड है। ट्रू मॉरलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एंड थ्रू द लॉ ऑफ स्टेट दैट मस्ट बी ओबेड बाय द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट बट नॉट बाय द मेंबर ऑफ अदर स्टेट। सी, जो भी रूल्स, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी राइट्स थे वो सब सही, जो जिस स्टेट में बने हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हो वही लोगों ने ओबे करने चाहिए। जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उन्होंने कुछ भी ओबे नहीं करते, उन पे ये रूल लागू नहीं होते। जैसे महाराष्ट्र के रूल्स है महाराष्ट्र में ही लागू होते हैं, कर्नाटक के रूल्स अपने पे लागू होते हैं क्या, नहीं होते। अपन ने आपके लॉकडाउन में देखा ना, सब जगह लॉकडाउन के रूल्स अलग अलग थे, राइट। हर स्टेट के लॉकडाउन में रूल्स अलग अलग थे, तो सेम थिंग इज अप्लाइड ओवर हियर। द स्टेट एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल विल एंड देयरफॉर the true will of every individual within it. Obedience to the will of the state is the only way for a man to be true to his rational self, because the state is the true self of the individual. Freedom, the right to act rationally, consists in acting in conformity with the order of the government. See, freedom, the right to act rationally. See, freedom चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, राइट। तो ये सब कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं। द स्टेट हैज़ सुप्रीम राइट अगेंस्ट द इंडिविजुअल हुज हाईएस्ट ड्यूटी इज टू सबमर्ज हिमसेल्फ इनटू द स्टेट। सी, द स्टेट हैज़ अ सुप्रीम राइट, स्टेट के पास सुप्रीम राइट रहता है ताकि वो हर इंडिविजुअल का ध्यान रख सके और अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सके। हेगल कॉल्स for an anti-democratic authoritarian state that has absolute right over its component members precisely in order to attain maximum freedom. See, Hegel's fall and Hegel's fall. हेगल क्या बोलता है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है यहाँ पे, राइट। आस्किंग फॉर अ ऑथोरिटेरियन स्टेट, लाइक स्टेट खुद का खुद काम करे, जहाँ पे उनको राइट रहती है ताकि वो हर किसी के साथ अच्छे से काम कर सके एंड इट कैन अटेन मैक्सिमम फ्रीडम, राइट। स्टेट को पूरी फ्रीडम मिले। इन एनी पर्टिकुलर इरा वन स्टेट में बिकम द प्रेफर्ड व्हीकल ऑफ द एब्सोल्यूट। सी, इन एनी पर्टिकुलर, अभी आप कोई भी पर्टिकुलर फील्ड ले लो, वन स्टेट में बिकम द अभी प्रेफर्ड फॉर द ऑफ द एब्सोल्यूट। This favored state can be recognized by its dominant position in the world arena. See, ये जो अच्छा स्टेट अपन बोल रहा है, अगर अच्छा स्टेट रहेगा तो क्या है, पूरे वर्ल्ड में वो स्टेट को इम्पोर्टेंस रहेगा।
पूरे वर्ल्ड में स्टेट का इम्पोर्टेंस रहेगा. दैट नेशन हैज़ एब्सोल्यूट राइट ओवर ऑल द अदर. फिर वो नेशन को क्या है, पूरे दूसरे नेशन पे भी राइट रहता है. एंड हेल्दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द एब्सोल्यूट, एंड it can have a healthy representation. The nation that wins the war during a particular period is one preferred by God. See, जो nation जो war में जीतता है during particular period is one preferred by the God. This position is not a permanent one. See, but war में जीता तो क्या आपकी position permanent हो गई क्या? नहीं, this position is not the permanent one. Each victorious conquered nation come closer to the ideal state than the one defeated. Each represent a more preferred incarnation of world reason. See, आज वो देश जीता है तो क्या हर वॉर में वो देश जीतेगा क्या? नहीं. कि और फिर क्या हो गया, दूसरा कभी वो स्टेट डिफीट नहीं हो गया, वो स्टेट कभी ना कभी तो डिफीट भी हो सकता है. ईच रिप्रेजेंट अ मोर परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ वर्ल्ड रीजन. द फॉर्म ऑफ हेगल्स कलेक्टिविज्म इज नेशनलिज्म rather than the majority or mankind as a whole. See, the form of हेगल्स कलेक्टिविज्म, ये क्या है, इज नेशनलिज्म. यहाँ पे क्या है, वो नेशनलिज्म की बात कर रहा है रैदर देन किसी मैनकाइंड की बात ना करते हुए या पूरे वर्ल्ड की बात ना करते हुए. ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नेशनलिज्म. पिटिंग वन नेशन अगेंस्ट अनदर मेक्स पॉसिबल द मोर परफेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल आइडिया. सी, पिटिंग वन नेशन लाइक एक नेशन का अच्छा करो तो क्या है, ऐसा है कि हम लोग दूसरे नेशन के अगेंस्ट करें, यूनिवर्स के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता. हम उस नेशन की भलाई कर रहे हैं. हेगल आर्ग्यूड दैट अ वर्ल्ड स्टेट वुड नॉट हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन. सी, हेगल आर्ग्यू क्या करता है कि भाई ये वर्ल्ड स्टेट वुड नॉट हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड थस अ रिजल्टिंग सिंथेसिस वुड बी इम्पॉसिबल. और फिर रिजल्ट क्या है, अच्छे से, बट ऑब्वियसली नहीं आएगा. हाउएवर परहैप्स it could be argued that a world state would have a contradiction in anarchy with a potential resulting synthesis of freely chosen voluntary communities and association. See, however perhaps it could be argued that, इससे अपन argue भी क्या कर सकते हैं, world state could have a contradiction in anarchy with a potential, एक potential के साथ जिसका रिजल्ट क्या है, अपन एक अपनी अच्छे से कम्युनिटी बना सकते हैं, अपन एक अपना एसोसिएशन बना सकते हैं. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलिंगन स्टेट एक्सप्लेन्स विद द फॉलोइंग पॉइंट. से स्टेट इज सुपर ऑर्गेनिज्म लाइक अ गॉड ऑन अर्थ. स्टेट क्या है, इज सुपर ऑर्गेनिज्म लाइक अ गॉड ऑन अर्थ. हेगल्स डिफाइन द स्टेट एज एक्चुअल गॉड. हेगल क्या डिफाइन कर रहा है स्टेट, एज अ एक्चुअल गॉड. इन हिज वर्क philosophy of history, he said the march of God in the world is the state. See, in his work philosophy of history, he said the march of God in the world is the state. The state is the final and ultimate institutional expression of the spirit. See, state क्या है, the state is the final and ultimate expression of the spirit. It is the highest embodiment of spirit. ये क्या है, ये स्टेट क्या है, सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सब कुछ अच्छे से बिल्ड होता है, लाइक एम्बॉडमेंट ऑफ स्पिरिट, लाइक अच्छे से सबका मन जागरूक होता है. इट इज़ अ सुपर ऑर्गेनिज्म बट एन इंस्ट्रूमेंट. सी, इट इज़ अ स्टेट क्या है, सुपर ऑर्गेनिज्म है बट नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, बट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है. हेंस स्टेट शुड बी वर्कशिप लाइक अ गॉड. इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, स्टेट को अच्छे से वर्कशिप करना चाहिए. वी शुड वर्कशिप स्टेट एज अ गॉड. देन state is natural. Hegel rejected the idea of the organism of the state in a social contract. See, अबे Hegel क्या बोल रहा है, Hegel has rejected, see, Hegel rejected the idea of the
origin of the state in a social contract. According to him, state is the product of long evolution and this evolution passes through several stages. See, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट है, हाँ, ये एक प्रोडक्ट है जो लॉन्ग इवोल्यूशन चलता है और जो इवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, इट गोज टू द सेवरल स्टेजेस. मतलब अगर आप लॉन्ग इवोल्यूशन की बात कर रहे हो तो बट तो ऑब्वियसली इट शुड गो थ्रू सम प्रोसेस, राइट. बिना प्रोसेस के तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे. सो स्टेट इज हाईएस्ट एंड फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट. सी, स्टेट क्या है, स्टेट सबसे बड़ा है और ये फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट है. It emerged as the final stage of evolution of human institution. See, it emerged as the final stage of evolution. ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, ये एक फाइनल स्टेज है जिससे एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन तैयार होगी. फाइनल फैमिली इन दिस इज सोसाइटी इज इट्स एंथिसिस एंड द स्टेट इज इट्स सिंथेसिस. सी, फैमिली क्या है, इन दिस सोसाइटी इज एंथिसिस है और स्टेट क्या है, सिंथेसिस है. Now, state is a whole body. State is like a whole body. It is the synthesis of family and society. See, स्टेट को भी एक पूरा बॉडी के जैसे कंपेयर किया है. लाइक उसके अंदर इंडिविजुअल्स रहते हैं, फैमिलीज रहती है, अलग अलग लोग रहते हैं. जैसे अपने बॉडी में भी अलग अलग बॉडी पार्ट रहते हैं, हर किसी का अलग अलग फंक्शन रहता है. इसीलिए उसने स्टेट को कंपेयर किया है ह्यूमन बॉडी के साथ. ईच इंडिविजुअल इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेट. और हर एक इंडिविजुअल स्टेट का एक पार्ट रहता है. इफ़ द स्टेट इज़ डिस्ट्रॉयड वेरियस पार्ट विल लूज देयर एग्जिस्टेंस. सी, अगर स्टेट को ही आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो क्या होंगे, बहुत से अलग अलग पार्ट जो रहते हैं स्टेट में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका भी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा. स्टेट इज़ अ होल बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज इन्फीरियर टू द होल. सी, इसलिए स्टेट को एक बॉडी से कंपेयर किया है और वो सबसे इन्फीरियर है इन अ होल, लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट है. स्टेट इज़ एन एंड. अकॉर्डिंग टू हेगल, स्टेट इट इज़ एन एंड, इट इज़ नॉट अ मीन. स्टेट इज़ फाइनल. अकॉर्डिंग टू हेगल क्या है, स्टेट इज़ एन एंड. स्टेट क्या है, एंड है, और स्टेट जो भी बोलता है वो फाइनल होता है. स्टेट इज़ सोवेथ एंड सुप्रीम ओवर ऑल. सी, यहाँ पे क्या है, स्टेट इज सोवेथनेस इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर. सी, स्टेट क्या है, स्टेट इज सोवेथनेस इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर. सोवेथनिटी ऑफ द स्टेट लेज नॉट इन द पीपल बट द किंग. सी, सोवेथनिटी ऑफ द स्टेट कहाँ पे रहती है, ये पीपल में नहीं रहती है. लाइक स्टेट कैसे काम करेगा, कैसे अच्छे से चलेगा, ये किस पे डिपेंड रहता है, ये लोगों पे डिपेंड नहीं रहता बट ये किंग पे डिपेंड रहता है. हेगल ऑल्सो अपोज टू द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर. सी, हेगल ने क्या किया, हेगल ऑल्सो अपोज टू द थियरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर. फ्रीडम पॉसिबल ओनली इन स्टेट. द इंडिविजुअल हैड नो एग्जिस्टेंस पार्ट फ्रॉम द स्टेट. सी, अभी इंडिविजुअल को क्या है, स्टेट से अलग नहीं है. अगर इंडिविजुअल है तभी तो स्टेट है. फ्रीडम पॉसिबल ओनली विद इन द स्टेट. फ्रीडम का पॉसिबल है, सिर्फ स्टेट में पॉसिबल है. ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ द स्टेट इज़ द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल. सी, ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ द स्टेट. सी, ओबीडियंस लाइक जो भी लॉज ऑफ द स्टेट है वो ओबे करना, ये एक इंडिविजुअल की सबसे बड़ी ड्यूटी है. बराबर है ना. अभी जो भी रूल्स रेगुलेशन, अभी कोविड चल रहा है तो जो भी रूल्स रेगुलेशन थे, वी ट्राई टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाट द स्टेट हैज़ मेड, राइट. बिकॉज दिस लाइज द ट्रू फ्रीडम. तभी अपना फ्रीडम अच्छे से चलेगा, तभी स्टेट अच्छे से काम कर पाएगा. द स्टेट नॉट ओनली अलाउज बट एनलार्जेस द फ्रीडम ऑफ द सोसाइटी. द स्टेट नॉट ओनली अलाउज बट एनलार्जेस the freedom of the society. The state is the actualization of freedom. See, ये state क्या है, state is the actualization of freedom. The individual gets all his moral and spiritual reality from the state. See, the individual gets all the morality and spirit reality from the state. See, individual को moral, spirit, life सब कहाँ से मिलता है, reality सब कहाँ से मिलती है, it is only through the state. He regarded individualism
as the greatest enemy of the national integration. See, he regarded individualism as the greatest enemy of the national integration. Like अगर सब अपन खुद का ही सोचे, सिर्फ खुद का ही करें, तो क्या है, अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा हो सकता है, तो उसको एनिमी बोला है. पीपल मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शो अनकंडीशनल अलायंसेस टू द अथॉरिटी. सी, लोगों ने पहले जो भी हायर अथॉरिटी है उनको अच्छे से सपोर्ट करो, अनकंडीशनली करो. द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मस्ट कम फर्स्ट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट. सी, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट का ध्यान रखना है, राइट. स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े आपको, लाइक जान देनी पड़े तो आप आपकी जान भी दो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, राइट. और सबसे पहले आपको स्टेट के बारे में ही सोचना है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट्स है इसमें. ओके, द 7th पॉइंट अपन नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे. मीनवाइल, रीड द टॉपिक वेल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.